Assalamu alaikum, everyone. Thank you, On, for conducting this webinar with us. My team is also here, Kibria from Team Learning. Kibria, do you want to take over and please introduce On? And then I think you can wait 2 more minutes for most people, Yeah, and then we can start. yeah. We can start at 6:05, and it will help, people join. Uh, are you here? Yes. Assalamu alaikum, everyone. Glad to be here. Wale- Walaikum salam. Let's wait for a couple of minutes till people join. Up they have started to join. Okay, no worries. And yeah. We can start at 6:03. Yeah. Hello, assalamu alaikum, everyone. I think we can start and people will just keep on joining. Thank you so much, on for taking out the time and joining us for this really interesting session. For all the participants today, we have On Sayed with us. He is based in Germany, and he was so kind enough to take out the time to join us for this interesting conversation. So On has been into the business for quite some time. Definitely, it's been 6 to 7 years that he has been working in project and product management. Currently, he is driving the operations at DevCheco. And is a graduate from Lahore University of Management Sciences. On particularly has a very good experience, and it spans over a couple of years in voice AI. We have seen voice AI in almost incorporated in almost every business that we have. It includes customer service and multiple other use cases we see being implemented currently into the market. So this is going to be an informative session for us, for all the participants, and on we are really looking forward to hearing more about this $54 billion market and how all of us can play our part and make the best out of it. Thank you so much again for joining, and I think let's start. Okay. Thank you so much, Kibriya, for the wonderful introduction. Assalamu alaikum, everyone. It's a pleasure to be here. So I'll just share my screen and then we can start off with the webinar. Okay. Let me know if you guys can see my screen. Yes, we can see. Okay, great. Okay. So firstly, thank you so much, Atom Camp, for the opportunity to, sort of have a look at my idea and, give the importance to voice AI. And the reason, I could have, I've been in the AI space for the past 2 years, but the reason I wanted to focus on voice AI is the fact that, after doing so many things in this space, this is something that really resonated with me along with the customers that I've been serving. And I really feel there's a huge potential uh, with voice AI. So a little about me. Can I give you a brief background? But just to tell you, yes, I'm based in Germany. Right now, I'm based in Magdeburg. I've been in the tech space for the past 6+ years. Currently, I'm the co-founder and CEO at DevGecko, and we are primarily building AI agents for businesses across the globe.
My focus is primarily on sales, product development, and implementing AI-driven infrastructures. This is a very key point over here. AI-driven infrastructures, what it is, what does it imply? And in the latter part of the presentation, I'll shed some more light on this. दूसरा जो है, I think I'll थोड़ा मैं mix ही करूँगा English और Urdu so that it's a better understanding for all. And at the end part of the presentation, I would like to have about 15 to 20 minutes to answer any questions that you may have, क्योंकि उससे फिर हमारी काफ़ी confusions वगैरह with respect to this industry दूर हो जाएंगी. अच्छा जी, तो why voice AI? I mean, that's a very, आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि आप कोई भी बूट कैम्प कर सकते थे, आप चैटबॉट का कर लेते, आप ऑटोमेशन का कर लेते, आप कुछ भी कर सकते थे, बट व्हाई पर्टिकुलरली वॉइस एआई? So the reason voice AI is the fact that I've done a lot of research on this, and you guys can do it as well. I've also mentioned a couple of resources at the bottom that you can have a look at. This is actually what I would say कि जो fluff नहीं है AI इंडस्ट्री में, कि ये एक ऐसा solution है जो कि हमने भी सेल किया है और मार्केट में लोग सेल कर पा रहे हैं at a very easier rate compared to other solutions. So this is one aspect. और दूसरा जो मैंने एक चीज देखी है कि there is still that human interaction जो as humans हम चाहते हैं, जिसमें वॉइस का एलिमेंट आता है. आप जो मर्जी कर लें, हमारे पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स कॉल पे ही बात करना पसंद करेंगे, मतलब हम जितने भी टेक हैवी हो जाएं, तो वॉइस, ह्यूमन इंटरेक्शन, दैट एम्पैथी, इमोशन, वो बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए. और वॉइस में आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के ले लें, उसमें वॉइस का कहीं ना कहीं जो रोल है वो है, बी एट कॉल सेंटर्स, बी एट कस्टमर सक्सेस, कस्टमर सर्विस, सेल्स, आउटबाउंड, इनबाउंड, हर जगह वॉइस आपको दिखेगी. तो इसकी जो एक एनालिसिस किया है कंपनी ने, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको जरा वो एक दिखा देता हूँ. इसकी जो स्फेरिकल इनसाइट्स, यूएस बेस्ड कंपनी, एंड दे हैव डन लाइक अ 200-page रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल वॉइस असिस्टेंट मार्केट साइज. और ये इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इन द नेक्स्ट 10 years, और ये पूरी आपको एक मार्केट कवरेज देती है. आई वुड रियली लव फॉर ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस रिपोर्ट. आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसमें सारी मार्केट वाइज के कौन कौन सी मार्केट्स में सबसे ज्यादा इसकी इफेक्ट होगी एंड वेयर द मार्केट स्टैंड्स एज ऑफ राइट नाउ. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई एम श्योर मोस्ट आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, but this is the live demo of GPT-4o real time conversational speech. और ये OpenAI की स्पीच टू स्पीच API है, जो कि Q1 of 2025 में, जो मैंने मेंशन भी किया है, हमारे पास आएगी. And apart from that, the last is this is guy Liam Otley. I'm sure you, अगर आप लोग इसका नहीं पता, आप जरूर इसको YouTube पे फॉलो करें. He's a very renowned AI agency entrepreneur and he is doing some really good work. और इसने जितने भी US और दुनिया में वॉइस AI entrepreneurs जो अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ये एक इंटरव्यू राउंड टेबल है, जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉइस AI की मार्केट में हो क्या रहा है. But just to conclude this slide over here, there is a huge potential. And the best part, what I like about voice AI, कि everybody is starting from scratch. मतलब अगर आप कहें कि the big guns like IBM, Microsoft, वो लोग भी उसी स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे हम हैं, क्योंकि वॉइस AI को आई भी सिर्फ अभी 1 से 1.5 साल हुआ है एट मैक्स. Acha, Kibia, could you just tell me if you could hear this live demo? I just wanted to confirm. मैं play करूँगा तो if anybody could just let me know. So this is a live demo of a hotel reservation. So एक ये AI bot है जो हमने client के लिए बनाया था. तो it's just a demo that we did. So I just want to share this with you. And I'll speak a little bit about कि यहाँ पे हो क्या रहा है. So Kibia, I'll just play and let me know if everybody could hear it. Sure thing, sure thing. I think no, we cannot hear it. I think you'll need to share Okay. your tab, that particular tab. अच्छा, full screen पे नहीं होता? No, you need to share the tab. Okay, okay. Let me stop presenting and let me Chrome tab. Okay. I hope this works now. Golden Nugget. It works. Can you hear it now?
Okay, great. Okay, I'll just Golden get Nugget in Lake touch. Charles, this call may be recorded. How can I help? Hey, I was hoping to make a hotel reservation for this Saturday through Monday. Sure, let me take a few details to see what deals we have. How many people are coming? It'll be 2 people. Alrighty, I'm just going to make a note of that now. Okay, I've got you down for 2 nights from Saturday, the 8th of July to Monday, the 10th of July for 2 people. Is that right? Yep, that's right. Now just give me 1 sec and I'll have a look at what rooms we have available. Would you like a room with 1 bed or 2 beds? 1 bed is fine. Okay, we've got a Gold Tower Deluxe King with a balcony available. So including taxes, you'll be looking at a total of $861.70. Should I go ahead with the booking? Yeah, that's fine. Let's go ahead. Okay, I'm going to have to put your booking under the name on your credit card. Could I please have your full name? Okay, I'm going to have to collect your address as well. So could you either type your zip code into the keypad and press pound or read it out loud? And could you also tell me the first line of your address? Okay, before I book you in, I'm going to have to take a payment. I'm going to transfer you over to our secure line now. If you could please stay on the line. Otherwise, your booking won't be confirmed. It'll just be a moment. Okay, that's confirmed. Is there anything else I can help you with today? No, that's all. Thank you so much. Have a great rest of your day. Thanks for calling. Goodbye. Okay, so I mean, we all saw the demo right now, and मैं थोड़ी सी business पे थोड़ा सा बात करूँगा. The best part about this is that the demo that you just saw, you have to look at it from a step-by-step perspective. अब इसमें 3-4 चीजें हुई हैं. पहली चीज ये हुई है कि वॉइस एजेंट ने कस्टमर से बात की इन अ वेरी एम्पैथेटिक मैनर. आपने उसकी टोन वगैरह सेट की. उसके बाद उसने चेक किया कि क्या उन पर्टिकुलर डेट्स पे या 2 नाइट्स के लिए रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं. सो हाउ इट डिड दैट वाज कि वॉइस एआई की यही एबिलिटी है कि राइट नाउ एक तो लेटेंसी इशू सॉल्व हो गया. लेटेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अबाउट 6-7 मंथ्स अगो, और हमें भी बहुत इश्यूज आते थे. बट जैसे जैसे क्लस्टर्स यूज हो रहे हैं, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स और आ रहे हैं और एआई एडवांस हो रहा है, हमारे लेटेंसी इश्यूज बहुत सॉल्व हो गए हैं. बाय द वे, ये डेमो इज अबाउट 2-3 मंथ्स अगो. तो अब जो हमारे लेटेस्ट एजेंट्स हैं उनमें इससे ज़्यादा आपको थोड़ी सी एम्पैथेटिक फील और उनकी टोन आपको मोर ह्यूमन लाइक लगेगी, क्योंकि जो वॉइसेस अब 11 लैब्स और ये प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं दैट आर अमेजिंग. सो इसमें क्या क्या हुआ? एक तो चेक हुई कि रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं. दूसरा चेक हुआ कि आपका एड्रेस क्या है. आप एड्रेस कीपैड पे भी डाल सकते हो और आप मुझे बता भी सकते हो. तीसरी चीज, उसने सिक्योर लाइन पे इसको ट्रांसफर किया जिसमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेके क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट डिडक्ट करके उसने पूरे कस्टमर बताया. सो कैन यू इमेजिन दिस होल प्रोसेस एक वॉइस एआई एजेंट ने रियल टाइम आपका सॉल्व कर दिया. सो लेट्स जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक वॉइस एजेंट आपने रिसेंटली बनाया था. सो एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो एक हैप्पी बर्थडे कैंपेन करना चाहते थे अपने कस्टमर्स के लिए. सो व्हाट इट डिड वाज कि एजेंट चेक करता था आज किसकी बर्थडे है और वो फिर उसको कॉल करता था. उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, नाम वगैरह, कौन सी सर्विसेज वो यूज करता है, और वो 20% का वाउचर देता था. एंड देन इफ द कस्टमर वुड वांट कि जी वाउचर मुझे चाहिए, तो वो फिर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप कर देता था, लाइक राइट ऑन दैट पर्टिकुलर कॉल. सो द एबिलिटी फॉर दीज एजेंट्स टू परफॉर्म लाइव एक्शंस, आई थिंक ये एक चीज है जो डिस्टर्ब करी है इंडस्ट्री को इस वक्त. क्योंकि पहले चले 1-on-1 कॉन्वर्सेशन थी, आपने चैट बॉट को क्यूरी की कि जी मुझे बता दो, हम चैट जीपीटी से बात करते हैं. बट नाउ द एबिलिटी टू, आप कॉल पे हो और एजेंट पीछे मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकता है. और एक तो है कि एक एजेंट परफॉर्म कर रहा है. अब एक कॉन्सेप्ट आ गया स्क्वाड्स ऑफ एजेंट्स का, विच मीन्स कि आपकी कंपनी में 3-4 एजेंट्स बने हुए. लेट्स से एक मिस कॉल मैनेज करता है, एक कस्टमर कंप्लेंट्स मैनेज करता है, और एक लेट्स से सेल्स करता है. ये तीनों आपस में भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ली, अब ये मेरी टाइप की कॉल ली, मैंने आगे लेट्स से एजेंट बी को राउट कर दी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बूट कैंप इज, जो इंशाल्लाह हम करेंगे, कि ये जो एक लाइव डेमो किया है,
this is something that you can show to your potential customers as well. Like this is my goal would be कि हम सब ये live demos बना सकें और हमारे agents live जा सकें for multiple use cases. So yeah, I mean, I don't know if this has gotten you excited or not, but मैंने जब 6 महीने पहले OpenAI की speech to speech conversation देखी थी मीरा मराठी के साथ, तो तब से मुझे था कि this is going to disrupt the industry, and I'm really happy that has happened as well. अच्छा, कुछ यहाँ पे वॉइस एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनका आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ्स और ट्रेड ऑफ्स बताना चाहता हूँ, और ये कुछ एक स्कोर है, ये ग्लोबल स्कोर, ये मेरा पर्सनल स्कोर है, 6 मेट्रिक्स पे मैंने ये स्कोरिंग की हुई है, सो आई कैन शेयर दैट दोज मेट्रिक्स विद यू, बट जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट दीस वॉइस प्लेटफॉर्म्स आर. सो इसमें ब्लैंड है आपके पास, वैपी है, रीटेल है, सिंथफ्लो है, लाइफकिट है. एक और प्लेटफॉर्म है, इट्स करेंटली अंडर डेवलपमेंट, अभी उन्होंने सीरीज ए अपना रेस किया है, सो काफी कंपेटिटर्स भी आ रहे हैं, और ओपनएआई इटसेल्फ भी अपना एक वॉइस एआई का प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसका हमारे पास अभी प्लेग्राउंड अवेलेबल है, उसी तरह एक वॉइस एआई का भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी. सो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है. एक्सक्यूज इसलिए नहीं है कि पहले होता था, जैसा आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड बाय द वे, मेरा इकोनॉमिक्स में मेजर है, मुझे सीएस का कुछ नहीं पता, 6 साल हो गए टेक इंडस्ट्री में, HTML भी सही से नहीं लिखनी आती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शौक है इस चीज का, एक लगन है, और उसमें बस रिसर्च और नॉलेज गेन करता रहता हूँ, और उससे फायदा हम सबको हो रहा है. तो अभी वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. लाइक अगर आज आप मुझे कहें जी मैं वॉइस एआई का मुझे शौक है, लेकिन मैं वॉइस एआई एजेंट नहीं बना सकता, दैट इज अ लाई. या तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, या आप किसी से आप कह रहे हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग, और सर ने भी अपनी पोस्ट में मेंशन किया है कि वी डोंट नीड दैट टेक्निकल नॉलेज, वी जस्ट नीड टू नो द राइट प्लेटफॉर्म्स, द राइट अप्रोच, द राइट वे टू बिल्ड दीज वॉइस एजेंट्स एंड टेक इट क्विकली टू द मार्केट. क्योंकि स्पीड इज एवरीथिंग इन दिस इंडस्ट्री. आज से 1, 2, 3 साल बाद हर बंदा इस इंडस्ट्री में आएगा 100%. AI is slowly but steadily transitioning industries, और ये एक फैक्ट है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि AI ने ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं. हम बूट कैम्प में मोस्टली वैपी को स्टडी करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड टूल टू गेट स्टार्टेड, बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस हैं तो लाइफकिट है. इसमें थोड़ी सी आपको डेवलपर एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बट दैट इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो मैनेज. So my 2 favorites are Vappy and LiveKit. Bland is also good, but Bland में थोड़ी सी काफी how should I say customization थोड़ी कम है, लेकिन prompt reliability भी कम है. So like it trade off में it sacrifices prompt reliability and customization. So that is why I don't like Bland. Vappy का ये कि it's highly customizable, suitable for all use cases. That's why people from all walks of life can use this. लेकिन इसका recent drop हुआ है reliability में, जिससे इसका स्कोर भी नीचे गया है. लेकिन I think that's something that they're working on relentlessly, और वो अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर करी जा रहे हैं. Synthflow भी अच्छा है, वाइट लेबलिंग भी आपको प्रोवाइड करता है, इसमें बिल्ट इन इंटीग्रेशंस है डिफरेंट टूल्स के साथ, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत हाई और कस्टमाइजेशन बहुत लिमिटेड है. सो ये कुछ वॉइस एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं. आई वुड रिकमेंड आप after this webinar, whenever you have the time over the weekend, just go through them and see how they're performing. अच्छा, बिजनेस मॉडल क्या है इसका? ये बड़ा मजे का सवाल है कि जी वॉइस एआई हमने सीख तो लिया है, लेकिन हमने इसको बेचना कैसे है, हम इस कस्टमर को परसुएट कैसे करेंगे? सो मुझे जो सबसे अच्छी चीज वॉइस एआई की लगी है, इट्स द बिजनेस मॉडल, क्योंकि इट्स अ पे एज यू गो मॉडल. मतलब कॉल आएगी तो तभी आप चार्ज करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि जी आपने रिटेनर लगाया हुआ है क्लाइंट के साथ, $1000 पर मंथ वो आपको दे रहा है और कॉलें आ रही है नहीं आ रही, आपको तो वो पैसे मिल रहे हैं. दैट्स नॉट द केस. सो इट्स अ वेरी यूजेज बेस्ड प्राइसिंग, तो कि कस्टमर को बेचना भी आसान होता है कि जी जब आप जितनी आपकी इन्फ्लक्स ऑफ कॉल्स हैं, जितना आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे. सो यूजुअली जो प्लेटफॉर्म कॉस्ट इस वक्त बन रही है, दैट्स अबाउट $0.02 डॉलर्स पर मिनट, तकरीबन 20 सेंट्स आप कह लें. लेकिन ये इससे भी कम हो सकती है विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट वी विल टेल यू इन द बूट कैंप, कि हम ये कॉस्ट कितनी मिनिमाइज कर सकते हैं. और आपने बस उस पर अपना सर्टन 100% या 150% प्रॉफिट चार्ज करना है, और ये आपने क्लाइंट को डिप्लॉय करके दे देना है. वे यू एक्चुअली मेक द मनी इज कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन फी है, विच इज अ वन टाइम फी, दैट इज वेयर वी कम इन. दैट्स द एक्सपर्टीज दैट वी विल गैदर, कि क्लाइंट चाहे तो खुद भी ये इम्प्लीमेंट कर सकता है,
बट इट्स गोना टेक हिम अबाउट 6 to 8 months, क्योंकि जो हम सारी चीजें सीखेंगे जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, डाउन टाइम पे कैसे मेक श्योर करना है, फॉल बैक कैसे करना है एजेंट को, तो वो जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस इम्प्लीमेंटेशन फी में आती है, जो आप वन टाइम चार्ज करते हो और उसके बाद फिर आपका यूजेज बेस्ड प्राइसिंग से रिटेनर स्टार्ट हो जाता है। और ये मॉडल बेचना भी आसान है कंपेयर टू दी अदर सॉल्यूशंस दैट वी सेल, एंड इट इज अ वेरी sort of a easy sell in a sense के आप क्लाइंट को जरूरी नहीं कि, so I'll give you an example. हमारा एक क्लाइंट था, it's a moving company, and we went to them and we were like कि जी हम आपकी आउटबाउंड कैंपेन्स मैनेज करना चाहते हैं, जो आप आउटबाउंड कॉल्स करते हैं सेल्स के लिए जनरेट करने के लिए, वी वांट टू मैनेज दैट। सो थोड़ा सा ना वो पीछे हट गया कि नहीं नहीं जी आप, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी थिंक्स एआई एज अ कंपटीशन की, आप हमारी पूरी बीडी डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करेंगे और ये है वो है और बड़े मसले मसाइल हैं, एआई हेलुसिनेट करता है और वो सही अगर बात ना समझा सका तो विल लूज आउट ऑन सेल्स। तो आई वाज लाइक ओके, यहाँ पे दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड 0 to 1 अपॉर्चुनिटी, कि वॉइस एआई की वजह से व्हाट इज वन थिंग दैट दे weren't एबल टू डू बिफोर, मतलब इंस्टेड कि मैं उनके करंट काम को तंग करूं, मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लाना चाहता था उनके लिए कि जो लेट्स से उनके करंट काम को नहीं छेड़ती, जस्ट टू गेट द बॉल रोलिंग और थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो। सो देन आई आस्क्ड देम कि जी आप कब तक कॉल्स लेते हैं, सो दे वर लाइक आवर टीम सिट्स फ्रॉम 10 to 7 PM। सो आई वाज लाइक ग्रेट। सो आई वाज लाइक मैं 7 बजे ऑनवर्ड जो भी आपकी इनबाउंड कॉल्स आएंगी उनको मैं मैनेज करना चाहता हूँ इससे। सो वी कॉल दिस मिस कॉल मैनेजमेंट, जो आपकी कॉल्स मिस हो रही है। सो द एजेंट अ वेरी सिंपल थिंग इट डिड कि वो मिस कॉल्स को कॉल बैक करता था, पूछता था क्या इशू है, आपका नाम क्या है, आपको क्या मसला है, वो सारी ट्रांसक्रिप्ट करके हम सुबह उनको एक डैशबोर्ड पे दिखाते देते हैं। तो लेट्स से अगर कोई पोटेंशियल लीड है या कोई मसला है उनके कस्टमर को, सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, वो पूरी उनकी सीआरएम में हम एजेंट के थ्रू डाल देते थे। तो सच अ सिंपल थिंग दैट वी डिड फॉर देम, बट इट एक्चुअली सेव्ड सो मच हैसल एंड इट हेल्प देम enhance their customer experience। और इसी में जो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि हमारे बूट कैंप का जो मेजॉरिटी चंक है, अबाउट 40% मैंने बिजनेस मॉडल को दिया है। कुछ देंगे बनाना तो आप लोग सीख लेंगे अपने एंड पे भी, बट माय गोल वुड बी कि हाउ यू शुड बी एबल टू सेल दिस, कौन सी आपने स्क्रिप्ट यूज करनी है, कौन सी आपकी फनल्स हैं, कौन सी सेल्स कैंपेन्स हैं, कैसे हमने इसको आगे लेके चलना है। सो यार एंड फिर आपके पास सेकेंडरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ जाती हैं, आप सेल कर सकते हो, आप ट्रेनिंग कंसल्टेशन दे सकते हो, आप वाइट लेबल करके भी दे सकते हो। सो देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद वॉइस एआई। फिर व्हाई नाउ, ये बड़ा एक मजे की डिबेट है जिसमें हम वॉइस एआई वर्सेस चैटबॉट्स वर्सेस एआई ऑटोमेशन, तो ये तीनों हम करते हैं, लेकिन आई वुड रेट वॉइस एआई हायर एंड आई टोल्ड यू द रीजंस बिफोर कि इसके ना यूज केसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वॉइस हर चीज में, हर इंडस्ट्री में है। सो इफ इवन इफ यूर इंडस्ट्री एग्नोस्टिक राइट नाउ, आपका कोई फोकस नहीं है, तो आप कुछ भी उठाएं उसमें आप वॉइस एआई का कोई यूज केस निकाल सकते हैं। और दूसरा ये कंज्यूमर फेसिंग है, ताकि विच मीन्स कि जो उसकी अडॉप्शन है वो बेहतर हो सकती है, और स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक पीपल विल गेट अकस्टम्ड टू वॉइस एआई सिस्टम्स सून। और फिर एआई ऑटोमेशन थोड़ी बैकएंड है, उसमें आपको कोडिंग चाहिए, पाइथन शाइथन ये आपको आना चाहिए, तो वो जरा पे कॉम्प्लेक्स हो जाती चीज, सीखने में भी टाइम लगता है। और एज ऑफ टुडे एआई एजेंट्स का एक्शंस परफॉर्म करना व्हाइल ऑन द कॉल, इसने इंडस्ट्री को चेंज किया है। फिर यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से स्टैट्स दिखाए हैं ऑटो डीलरशिप्स, डेंटल यूएस में, कि these are all our potential customers, कि अगर लेट्स से 21% unanswered calls हैं ड्यू टू हाई ट्रैफिक, सो ये एजेंट कर सकता है आंसर। आपकी जो unanswered calls डेंटल में है वो कर सकता है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ले सकता है, लाइक देयर सो मच दैट वी कैन डू। So the target audience for this bootcamp, I think primarily I would say with full confidence that people from any background can join this bootcamp. CS would be a plus, but it won't be a huge advantage क्योंकि हमने इन tools को scratch से सीखना है। So if you have a bit of coding background, आपको advantage जरूर होगी, लेकिन anybody who is willing to put in 15 to 20 hours per week should be able to successfully execute this bootcamp. फिर अगर आपने वॉइस से एआई डेवलपर बनना है, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है एआई के अंदर, क्योंकि वॉइस एआई इज आल्सो पार्ट ऑफ एआई, तो
इसके साथ आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडल्स कैसे काम करते हैं, फाइन ट्यूनिंग, जो जितने आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम इस बूट कैंप में कवर करेंगे, बट विद फोकस ऑन वॉइस. And this is not for you if you're looking, for a quick hit scheme. I'll be honest, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये I think अब हमें अंदाजा हो जाना चाहिए. Everything requires a lot of focus, a lot of hard work. I've been in this space for the past 2 years, और I've been taking it very slowly so that मैं बेहतरी के साथ कर सकूं. मेरे कोई आपको मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन जितने भी 5-7 अच्छे एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, माय गोल इज कि मैं उनको अच्छी सर्विस दे सकूं ताकि मैं वहां से ग्रो कर सकूं. सो राइट नाउ एवरीबडी इज इन द बिल्डिंग एंड लर्निंग फेज, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू जंप ऑन दिस बैंडवैगन एज वेल. अच्छा, ये थोड़ा सा करिकुलम है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने इसको 8 वीक्स में किया है, सो दैट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आप कह लें बूट कैम्प कह लें, क्रैश कोर्स कह लें, ताकि हम इसको, the goal is speed to market so that we're really able to get into the groove. So week 1 or 2 आपको मैं would be a voice AI master class, जिसमें हम voice AI के बारे में समझेंगे. Week 3 would be about automation, कि voice AI से action perform करके automate कैसे करनी चीजें. 4 and 5 में हम अपने AI agents build करेंगे. So like after this boot camp, all of you would have 2 to 3 use cases that you can take to your potential employer, you can take to a customer, you can take to anybody that you want. और फिर जो मेन चीज है इस वक्त AI में, विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है पर्सनली, मेरी टीम ने भी. तो हमने वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे. सो वी विल जस्ट पुट all of our learnings in front of you. Okay, this works, this does not work, don't waste time on this, don't waste time on this. ये एक blueprint है, आपको हम बना के देंगे कि ये आप, this is something that can go to production in a very fast manner. फिर week 6, 7 और 8, this is all about business. So money models, niche क्या होनी चाहिए, आपकी ऑफर प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा. AI ड्रिवन एक्विजिशन क्या है, आप कैसे अपनी सेल्स कैंपेन्स बना सकते हैं, AI को कैसे यूज कर सकते हैं प्रपोजल्स में, कोड आउटरीच में. फिर आपको टूल्स का बताऊंगा, सेल्स फोर्स, हंटर, लीड्स 311, how to pitch, LinkedIn marketing, so you get a hand of that. So basically how we are selling voice AI right now, I will teach that to you guys as well. और week 8 will be about sales process and service delivery, कि जी अब आपका एक लेट्स से यूज केस बन गया, आपके पास 2-3 कस्टमर है, अब हमने इसको स्केल कैसे करना है, इसका सेल्स प्रोसेस क्या होगा, कौन से स्पेशलिस्ट लोग आपको टीम में चाहिए जो कि बिजनेस को स्केल कर सके. सो दैट वुड बी द गोल. आफ्टर दिस बूट कैंप मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये है कि काफ़ी माइक्रो AI एंटरप्रेन्योर्स निकले, ताकि आप लोग जाके ये सॉल्यूशंस बेच सके मार्केट में, अपवर्क पे प्रोफाइल्स बनाए, अपनी सर्विस बेचे. लेकिन यू कैन यूज दिस बूट कैंप टू गेट टू ब्रेक इनटू द AI स्पेस एज वेल. लेट्स अगर आपने कहीं पे जूनियर AI इंजीनियर लगना है या हमने जूनियर AI डेटा साइंटिस्ट लगना है, so this boot camp would give you a very good impression on your CV, because you will have all of these projects that you see over here. So ये 7-8 चीजें हम ड्यूरेशन ऑफ दिस बूट कैंप हम बनाएंगे, जिसमें आपके वॉइस असिस्टेंट होंगे, एक कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बनाएंगे, फिर उन दोनों को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स वॉइस एजेंट बनाएंगे, जो भी रेस्टोरेंट वाला हमने लाइव डेमो में देखा था. फिर आपकी नीश स्पेसिफिक ऑफर कैसे बनेगी, लीड जनरेशन कैंपेन कैसे बनानी है, कस्टमर की रीएक्टिवेशन कैंपेन कैसे बनानी है, और बेसिकली आपका सेल्स प्रोसेस कैसे ले डाउन होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव नो बैकग्राउंड इन बिजनेस, यू हैव नेवर सोल्ड एनीथिंग, not an issue, we will teach you everything from A to Z. So ये थोड़ा सा मैंने बताया कि life after boot camp, let's say after 8 weeks, what should you be able to do, and this is everything. So you should be able to develop advanced voice AI solutions, जिसमें आप मल्टी प्रॉम्प्ट स्ट्रैटेजीज भी यूज करेंगे और आप कस्टम वॉइस असिस्टेंट्स बना सकेंगे. ऑटोमेटिंग वर्कफ्लोज, आप इनको प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करें. AI ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स. फिर आपके पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, लाइक द प्रोजेक्ट्स दैट यू विल वर्क ऑन इज समथिंग दैट क्लाइंट्स वो चीजें चाह रहे हैं. एंड सिंस आई एम इन दिस स्पेस, आई विल आल्सो गिव यू प्रोजेक्ट्स जो लेट्स से मेरा कोई क्लाइंट किसी पे काम कर रहा है, आई नो दिस इज समथिंग दैट इज वर्किंग इन दिस स्पेस. एंड सो या, थैंक यू सो मच.
I think I wanted to wrap this early as well so that I could take a couple of your questions. I think थोड़ा सा interactive webinar को कर लेते हैं. I hope that's okay, Kibriya. Take a couple of questions. Yeah, that's perfectly fine. And before we jump into the questions, I would like to, tell the participants about the boot camp that we are coming up with. So guys, we are coming on an Atom Camp. We have decided to come up with this very comprehensive 8 week long boot camp that will be purely focused on the voice AI, market. As on just took you through the curriculum के उसमें हम क्या क्या चीजें होंगी उसमें, from building the bots to all complex automations, how to create your sales funnel, how to identify the use cases and come up with MVPs and stuff like that. This is going to be a very comprehensive bootcamp, and those of you who have been wanting to jump into this market, I think that is a great opportunity. But that's just not it. We are here for 30 more minutes, and we are here to answer your questions related to the market. Even if you are already into the market, even if you're already into the space and you want to know more about it, On is here. And if you want to know particularly about the boot camp, we are here to answer your queries. So what I would request is that please write your questions in the chat, because if we allow you to unmute it, it gets a lot of very, very, very hard to control the whole discipline. So what I would recommend is please write down your questions in the chat box, and On is here. We have plenty of time and we'll be taking every single question. Right On? How does that sound? Yeah, I think that sounds wonderful, Kibriya. Okay. So we have the first question from Zubair. Zubair. Yeah. जी, Zubair. So Zubair, definitely, that's a very good question. और ये इसमें आपको थोड़ा सा I'll just spend a bit of time on it क्योंकि obviously पाकिस्तानी मार्केट उर्दू की है. लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल आपको ये है कि आप पाकिस्तानी मार्केट पे सैडली फोकस ना करें. बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा उर्दू में. उर्दू बहुत अच्छी बोलता भी है, लेकिन अभी द मार्केट फॉर अस राइट नाउ इज फॉरेन. एंड आई टेल यू व्हाई. एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान में आप एक्सपेरिमेंट करें, जैसा मैंने भी किया. सो आई हैड अ कपल ऑफ कस्टमर्स जिसमें मैंने वॉइस एआई एजेंट्स तकरीबन आप समझ लें कॉस्ट टू कॉस्ट बना के दिए. आई गॉट माई हैंड्स डर्टी, आई लर्नड हाउ टू बिल्ड देम. वो मेरे पास यूज केसेस भी बन गए, दैट हेल्प्ड मी सेल अब्रॉड. तो बिल्कुल आप उर्दू में भी ये ट्रेन हो जाता है. और अब जो डायलेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन है 11 लैब्स की, उन्होंने कुछ हमें देसी वॉइसेस दी हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में भी, और जिस तरह 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, वो चीज़ भी उसमें इंटीग्रेट हुई है और वो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू भी सिखा सकते हैं. सो आई डू हैव आई थिंक मे बी 2 और 3 यूज केसेस जो हमने उर्दू में किए हैं. हमने एक रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग एजेंट बनाया था एक रेस्टोरेंट चेन के लिए. तो वो उर्दू में सारा आपको ऑर्डर लेता है, कौन सा आपको बर्गर चाहिए, चूरोस क्या होते हैं, फिर वो चूरोस को पूरा उर्दू में समझाता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो या आई थिंक 3-4 months ago नहीं था, बट उर्दू has gotten better, and I see maybe in the next 6 to 8 months we might even get an Urdu LLM. So a lot of companies even in Pakistan are working on it. तो अगर लेट्स उर्दू ना भी हुआ, हिंदी LLM तो बन ही रहा है, तो we can utilize that. So I hope that answers your question. But Zubair, if I were you, आप ये चीज सीखो. We global बहुत बड़ी market है, and we want that foreign exchange as Pakistani. So let's just build locally, but we will sell it internationally. Okay. So Hussain Murtaza का question है, does the voice AI work for any dialect and accent? Hussain, मैंने अभी बहुत सारे डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन इसमें ये है कि 11 labs is coming up with new voices every month. So ये जो आपकी एक लाइब्रेरी है वो बढ़ती जा रही है. तो अभी हमने एक टेक्सास का एक पर्टिकुलर यूएस एक्सेंट होता है, शायद आप लोगों को पता हो, और जो एक साउथ अमेरिकन, जो साउथ के लोगों का एक पर्टिकुलर, जिसमें हर स्टेट का एक्सेंट है. तो वो जो एक्सेंट्स है ना, वो भी डायलेक्ट्स में आ रहे हैं. तो हमने एक टेक्सास बेस्ड कंपनी के लिए बिल्कुल एक सर्दर्न हाउडी पार्टनर टाइप हमने एक एजेंट उनके लिए बनाया था. सो यस, 11 labs is providing that, so you can work in a lot of dialects and accent, but any का I think it will take a bit of time. अच्छा, हमजा का क्वेश्चन है कि किब्रिया, when is the boot camp starting? ये अगर आप बता सकें तो I will have it. Yes, we will be announcing the boot camp next month, and it will start soon after, inshallah. Just please have a look at our website, and you will
be updated with every program that is being offered. Currently, we have our DS and AI bootcamp. I've commented the link in the chat. You also can explore that as well. Yes, on. We can, I think. Okay. Move on to the next one. Okay. How is this voice flow different from software you are teaching? Whatever you said would be no code, but does an integration working on coding side? Acha. Tala, very good question. So the VAPI that हम यूज करेंगे, how it's different from other voice AI platforms. अब for example, आप ये voice agents, let's say, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़े मजे की. So एक e-commerce वेबसाइट है, ठीक है. E-commerce वेबसाइट है, आप let's say मैंने बनानी है आज, ठीक है. So how will I build it? मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जावास्क्रिप्ट सीखूं, मुझे को बैकएंड की लैंग्वेज है लेट्स से Node.js और फ्रंट एंड रिएक्ट पे है और मेरा डेटाबेस MongoDB पे है. ये तीन मेरा स्टैक है और मैंने आज एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है. अब ये होगी जो मैं स्क्रैच से चीज बना रहा हूँ और लेट्स इसको सिंपल करते हैं तो HTML CSS PHP यूज करके मैंने बना लिया. अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास है Shopify, मेरे पास वर्डप्रेस है, मेरे पास फिक्स है, मेरे पास और ये बहुत से नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं. अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भी तो कुछ एक्सपर्टीज है. सो दिस इज इन अ सिमिलर वे कि आप वॉइस एआई एजेंट GPT या लामा या कुछ भी यूज करके खुद भी बना सकते हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए. लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म्स ने हमारे लिए वो चीज आसान कर दी है. वैपी ने, ब्लैंड ने, लाइव10 में कुछ वो डेमोक्रेटाइज करना चाह रहे हैं एआई को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सकें. और स्पीड टू मार्केट इज एवरीथिंग. सो हम दोनों तरीके से करते हैं. हम कस्टम GPTs ही बनाते हैं 3.5 पे, उसमें लग जाते हैं हमें तकरीबन, एग्जांपल लेता हूँ, 8 से 12 हफ्ते. लेकिन अब इन प्लेटफॉर्म से अगर आपने एक दफा एक इंफ्रास्ट्रक्चर एआई का बना लिया है तो आप उसको मल्टीपल कस्टमर्स पे यूज कर सकते हैं. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. और इसलिए ये डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से कि ये आपको स्पीड टू मार्केट में हेल्प करते हैं. और दूसरा जो इंटीग्रेशन है उसमें कोडिंग की जरूरत होती है, बिल्कुल. थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट्स मुझे समझाने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनको स्टडी करें. ज़ैपियर है, मेक है, कस्टम वेबहुक्स है, लेट नोड है. बहुत सिंपल टूल्स हैं ये, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भरे हुए इनके. आप एक ऑटोमेशन बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, या अगर आप लोग सीख लेंगे आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है. सो और जितने भी अभी ऑटोमेशंस हैं जो ये एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, दे आर यूजिंग दीज टूल्स. बिकॉज अगर आप स्क्रैच से प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन की हुई है. आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाएं और आज ही गूगल कैलेंडर, स्ट्राइप, पेपैल, हर किसी के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा. सो you don't need coding for that 100%. So I hope that answers your question. So this is like, we want this bootcamp to be for people that are persistent, that want to persevere, और वो फोकस के साथ इस चीज से ये स्किल सीख सकें. अच्छा, गोहर अली, वी नीड लैपटॉप इफ यस. जी गोहर, सैडली ये थोड़ा सा आपका अच्छा सवाल है. लैपटॉप थोड़ा आपको हैवी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि जब आप GPT को ट्रेन करते हैं तो समटाइम्स नॉलेज बेस में बहुत सारा डाटा होता है, और आपने जब ऑटोमेशंस करने हैं तो यू नीड, आई वुडंट से कि बहुत हाई एंड लैपटॉप हो, बट एटलीस्ट समथिंग दैट कुड मैनेज दैट. तो जो एक नॉर्मल आपका आई थिंक 8 GB रैम, आपकी अगर SSD लगी हुई है तो इट शुड बी गुड टू गो. So we don't need a very high end laptop, not a very low end as well, something in the middle, that would work. I want to use Zubair कह रहे हैं, I want to use it for my own family business, so I want other languages to train it for those purposes. Yes, so Zubair, as I mentioned, you can, आप अपने family businesses के लिए use करें इसे, उर्दू में ट्रेन हो जाएगा. बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो हमारी गोल होना चाहिए कि हम इसको इंटरनेशनली सेल करें. Thanks for the gift. Thank you so much, Dr. Mustafa. I'm really happy that you liked it. Okay. Arslan जी का सवाल है, can we train it in Italian and German language? So Arslan, क्योंकि मैं इस वक्त जर्मन मार्केट में हूँ और मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ जर्मनी का. So Germany and the European Union itself is at a crossroads right now.
So Germany is part of the top 5 economies in the world, but apart from those top 5 economies, Germany has done really bad. And Germany is the backbone of European Union. तो अभी आपको पता है इनकी गवर्नमेंट भी गिरी है और फरवरी में इलेक्शंस आ रहे हैं. तो इनका जो मेन इस वक्त मुद्दा है वो ये है कि जी हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूरोक्रेसी है. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव लिव्ड इन यूरोप, बट मेरा भी कुछ 4-5 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है. बट यहाँ चीजें इतनी स्लो है कि अभी भी फैक्स मशीन्स यूज करते हैं यूरोपियंस, और वो इतने ढीठ है कि दे डोंट वांट टू चेंज. तो शुरू में बेचना मुश्किल होगा, बट मे बी जो एक अर्ली अडॉप्शन आपकी कंट्रीज हैं, जिसमें मैं यूएस की बात करूंगा, जिसमें मैं मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, मैं सऊदी अरेबिया की बात करूंगा, वो काफी जो है ना. तो अगर आपने कोई डिफरेंट लैंग्वेज करनी है तो आई थिंक अरेबिक वुड बी समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट. लेकिन यस, यू कैन ट्रेन दिस इन इटालियन, इन जर्मन. ट्रेनिंग तो इंग्लिश में ही होती है, बट आप उसमें उसको प्रॉम्प्ट देते हो कि आप उसको ट्रांसलेट करके यू यूज दिस इन द लैंग्वेज दैट यू वांट. क्योंकि अभी लैंग्वेज स्पेसिफिक एलएलएम्स इतने हैं नहीं, सो मोस्टली वी रिलाइंग ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ट्रेनिंग. But yes, I think European market is a huge opportunity. That's why I'm also here. It's a big market, and right now they understand कि we have to change. हमें digitalize होना है, हमें digitization पे पैसे लगाने हैं. हम कितनी को इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए जर्मनी की मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स या यूरोप की इज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ये जो आपकी मशीनरी होती है. लेकिन दे ऑल्सो वांट टू क्लाइम ऑन द टेक बैंडवैगन, क्योंकि यूएस बहुत आगे चला गया है और बाकी कंट्रीज, सो दे वांट टू कैच अप. So yes, this will be a huge opportunity here. तो स्टार मुगल का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ऑन प्रेमिस सॉल्यूशन फॉर डाटा से. अच्छा, सो स्टार की बड़ा उसका सिंपल सॉल्यूशन है. मैं भी अपने कस्टमर्स के लिए करता हूँ. ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर इज अ ह्यूज कस्टमर, बट आई थिंक स्टार्ट हमें करना चाहिए एसएमई से, लाइक स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज. बट जब आप एंटरप्राइज लेवल पे आप जाओगे तो आप उनको ये इन हाउस डिप्लॉय करके दोगे. सो लेट्स से यू विल दे विल probably they will know what's going on behind the tech, और आप उनको लोकली डिप्लॉय करके दोगे. तो लेट्स से उनको जीपीयूज लेने पड़ेंगे एआई को रन करने के लिए, या लेट्स उनकी अपनी अज्योर की या एडब्ल्यूएस की इन्वायरमेंट्स होंगी, जीसीपी की, व्हाटएवर इट इज. बट यस, ये ऑन प्रेमिस सॉल्यूशन मिल जाता है. और कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसा मैंने आपको बताया है कि वो वाइट लेबल सॉल्यूशन भी देते हैं. तो लेट्स से अगर आपने उनसे वाइट लेबल सॉल्यूशन लेना तो आप किसी को भी डिप्लॉय करके दे सकते हैं. लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, इसमें एफर्ट भी ज्यादा लगती है, इसमें थोड़ी कस्टम कोडिंग भी होती है. अच्छा, अब एक कस्टमर हो जाएगा मुझे कस्टम बना के दें, तो वो फिर एक डिफरेंट बॉल गेम है. विच इज कि आप फिर कोई जो एलएलएम है जो ओपन सोर्स है उसको यूज करेंगे, उनको पूरा बना कर देंगे, तो कॉस्टली है. और बहुत से मेरे जो कस्टमर्स हैं मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि जी आप ना ये डेटा सेफ्टी ये वो फलाना ढमकाना आप हमें ना करके दें. सो देन आई टेल देम ओके, इफ यू वांट दिस टू डिप्लॉय, तो जी 8 से 12 लाख रुपए का जीपीयू है, ये कॉस्ट है, आपको बेयर करनी पड़ेगी. तो फिर दिल लाइक अच्छा चलें आप ना जीपीटी पे ही करते हैं. तो क्योंकि देखिए सेंसिटिव डेटा अंटिल एंड अनलेस क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पासवर्ड्स वगैरह नहीं है ना, तो आई थिंक बाकी तो मैं समझता हूँ हर चीज ऑनलाइन है. यूएस में तो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर तक ऑनलाइन होता है, आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं आप क्या हो, तो सबसे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वहाँ पे ये जो डेटा है पब्लिकली अवेलेबल है आई वुड से. तो फिर इट्स अ वेरी इट्स इजी टू परसुएड देम कि नहीं, अब सर मेरी सारी इंफॉर्मेशन पिच बुक पे और ये जो टूल्स हैं जूम इन्फो वगैरह पे पड़ी है, और आई थिंक दैट्स आल्सो पर्सनल इंफॉर्मेशन. उसके अलावा तो मैं कोई आप सीएनआईसी वगैरह नहीं देते. सो या वन एस्पेक्ट इज कि आप फिर पैसे खर्चे जीपीयू लें, आपको लोकली डिप्लॉय करते हैं. और बैंक्स वगैरह आई थिंक उनका अपना डेवऑप्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं. सो या बट ये जरा मे बी 3-4 years down the line, this is the customer you should be targeting. Right now I think there's a lot of potential in small to medium enterprises, especially in the foreign market. जी सर, निवीद साहब आई थिंक मैंने ऑन प्रेम का क्वेश्चन आंसर कर दिया. तो यस, वी कैन हैव ऑन प्रेम वॉइस एआई. आप यही वॉइस एआई यूज करके लोकली डिप्लॉय कर लें. अभी आते हैं हमजा अकरम के क्वेश्चन पे. ही हैज आस्क्ड about the call flow regarding an example you showed. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन हमजा. तो हमजा ये प्रॉब्लम था लेटेंसी का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी हद तक
सॉल्व मोस्टली जो अच्छे वॉइस एआई एंटरप्रेन्योर्स और एजेंसीज उन्होंने कर लिया है. सो हाउ वी डिड दिस वाज कि एक तो स्पीच टू स्पीच मॉडल आया, ओपन एआई ने उसको लॉन्च किया अभी पायलट पे, मैंने भी उसको टेस्ट किया, अभी Q1 में वो लॉन्च होगा. इसके लिए ना मैं आपको एक आई थिंक ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं आपको ना एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये पूरा प्रोसेस सबको समझ आ जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है बैकग्राउंड में. अच्छा, हाउ हैप्पी वर्क्स, ठीक है जी. मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हमजा, और ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा उस पर टाइम लगाते हैं. अच्छा, आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन. अच्छा, सो दिस इज हाउ द वॉइस एआई वर्क्स. आपका एक एसटीटी है जिसको हम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्राइबर कहते हैं. वो टेक्स्ट फेंकता है मॉडल में विच इज द एलएलएम, और ये आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जीपीटी, लामा, कोई Azure का, गूगल का, जेमिनी, व्हाटएवर यू वांट टू यूज. दिस इज द मॉडल, एंड देन टेक्स्ट टू स्पीच अगेन विच इज वॉइस. सो टेक्स्ट पहले स्पीच टेक्स्ट में कन्वर्ट हुई, फिर वो एलएलएम में गई, फिर एलएलएम ने टेक्स्ट टू स्पीच किया. अब इसकी वजह से जब हम थोड़े से लो, जैसा जीपीटी 3.5 यूज कर रहे थे, तो लेटेंसी का इशू आता था. मतलब आप बोल रहे हो, आपने बोल दिया है, अब 3 सेकंड के लिए मॉडल चुप है, रियल टाइम कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, तो क्लाइंट कहता है यार ये क्या है. बट अब ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. और अब जो ये स्पीच टू स्पीच एपीआई आ रही है, जो कि यहाँ पे है रियल टाइम कॉन्वर्सेशनल स्पीच, ये है वॉइस टू वॉइस कॉन्वर्सेशन. मतलब मेरी आवाज एलएलएम में जाएगी और एलएलएम भी मुझे वॉइस भेजेगा. ये जो कन्वर्जन है ना बीच में, जिसकी वजह से माइक्रो सेकंड्स का फर्क आता है, ये चीज खत्म हो जाएगी. सो इट्स लाइक यू स्पीकिंग टू द मॉडल एंड द मॉडल इज टॉकिंग टू यू बैक. और इसकी वजह से आपका जो लेटेंसी का इशू है वो सॉल्व हो गया है बहुत हद तक. और अब जितने भी हमने भी सॉल्यूशंस बनाए हैं, वी हैव गॉटन सम रियली गुड रिस्पांस के इट एक्ट्स रियली वेल. मतलब देखें, जब आप कस्टमर सर्विस से भी बात करते हैं तो थोड़ा टाइम तो वो लगाता ही, जब आप उसको लेट से बताते हैं जी मेरा CNIC है ये, तो कहता है 1 सेकंड, लेट मी जस्ट चेक दिस आउट. सो सिमिलरली एआई भी ऐसे करता है, वो कहता है होल्ड ऑन प्लीज गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, लेट मी चेक योर डिटेल्स. 2-3 सेकंड में आपको डिटेल्स ला के देता है और वो सारा बोलता है. सो दिस इज बेसिकली हाउ यू ट्रेन इट. दिस इज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, या आपने एजेंट को कितना अच्छा ह्यूमन इंटरेक्शन उसकी करनी है, उसका टेम्परेचर क्या रखना है, उसकी टोन क्या रखनी है. सो दिस ऑल कम्स हाउ वी बिल्ड दैट एजेंट. और यस, सो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एंड दिस इज द रीजन 6 महीने पहले मैं वॉइस एआई बिल्कुल नहीं बेच पा रहा था, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लेटेंसी इश्यूज थे और मेरे पास इतने जीपीयूज नहीं थे कि मैं क्लस्टर बना के करता. बट अब ये वैपी ब्लैंड वगैरह में क्लस्टर्स ऑफ एआई एजेंट्स दे रहा है. और इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपका एलएलएम होस्टेड किधर है. फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में है और आपका कस्टमर यूएस में यूज कर रहा है और आपका एलएलएम पड़ा है दुबई में सर्वर, तो उस पर भी लेटेंसी इश्यूज आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी दूर से कॉल जानी है. बट लेट्स से इफ योर कस्टमर इज इन द यूएस, आपको ये प्लेटफॉर्म्स यूएस का ही सर्वर देंगे ताकि वो भी जो माइक्रो सेकंड से उससे भी कम हो, बिकॉज स्पीड इज एवरीथिंग इन द वॉइस एआई मार्केट. एंड वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे. हमने 3-4 महीने में यही चीज एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी है कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं. और गोल यही है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग तो द एजेंट लुक्स एज रियल एज इट कैन, एंड दिस इज द गोल दैट वी विल इवेंचुअली रीच. फिर इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं कि हमने एजेंट को ट्रेन करना है, उसको थोड़ा सा वी हैव टू फाइन ट्यून इट एज वेल अ बिट. लेकिन अब ये और डिटेक्टिविटी, वॉइस एक्टिविटी का इशू भी सॉल्व हो गया, एंड दिस इज डन थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आपने कहना है कि इफ द कस्टमर इज स्पीकिंग, आप चुप हो जाओ, कस्टमर की बात पहले सुनो, और फिर उस तरह से. सो इट्स जस्ट गिविंग इट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे बात करनी है. सो हमजा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. हमास, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आई थिंक मुझे खुद मेंशन करना चाहिए था यार. यही तो बेस्ट बात है एआई की कि मतलब मैं और आप इस वक्त 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ऑन इस वक्त सिर्फ हमास से बात कर सकता है, बट एआई एक वक्त पे मिलियंस ऑफ हमास से बात कर सकता है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. और हमने जब वो एजेंट अपना बनाया था हैप्पी बर्थडे वाला, तो उन्होंने कहा यार हमारी तो टीम पूरे 6-7 घंटे सिर्फ कॉलों में लगी रहती थी, और आपने एक कॉल मार के सबको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया और हमारे पास डेटा भी आ गया. आई वाज लाइक यस, यू नो, दिस इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू. सो वी आर नॉट हियर टू
replace humans. We're here to help them. कि यार अगर आप कस्टमर सर्विस बेहतर करने के लिए आपकी टीम के 6 घंटे इस काम में लग रहे हैं, let AI handle the donkey work, you focus on growing your business. और हमारी सेल्स पिच भी जब आप लोगों को हम सिखाएंगे सेल्स प्रोसेस यही होगा कि हाउ डू वी सेल. हमने ये नहीं कहना चाहिए हम आपका काम ही रिप्लेस कर देंगे, आप घर बैठ जाए, नहीं. हाउ कैन वी हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस. आप कहाँ पे आपको मसले आ रहे हैं, आप मिस कॉल्स क्यों नहीं मैनेज कर रहे. अभी जो मैं आपको अपना रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग एजेंट बता रहा हूँ, तो यही है कि जब उनको पीक आवर्स पे हम डोमिनोज पे भी कॉल करें तो आपको कभी कभार होल्ड पे लगा देता है. अगर ये डोमिनोज का एजेंट हो तो यूल कॉल एंड ही विल आंसर, क्योंकि उसके लिए तो वो एक सेपरेट बस एक एंड पॉइंट और एक एक्स्ट्रा वो टोकन है, दैट्स इट. सो दिस इज द biggest opportunity of voice AI. At a time, I don't know, maybe X number of calls you can do. Yes, it is 24/7. It never sleeps. It does not sleep. तभी सोएगी अगर आपने ओपन एआई के पैसे नहीं दिए हुए, बट आप वो क्रेडिट कार्ड लगा दे ताकि टोकन्स आपके आते रहे. बट इट विल नेवर स्लीप. इट विल ऑलवेज बी 24/7. हमास मैंने अभी तक हमने एक स्क्वाड बनाया था एजेंट्स का. सो देयर वर 6 एजेंट्स दैट वी डिड, बट आई थिंक इसमें कोई लिमिट नहीं है. आई डोंट थिंक होनी भी चाहिए, क्योंकि इट्स अप टू यू आपने इसको कैसे परफॉर्म करवाना है. बट ये है कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स टास्क होती हैं उनके लिए फिर हम स्प्लिट करते हैं, स्क्वाड्स बनाते हैं. मेरे अगर कोई बिल्कुल एक नॉर्मल टास्क है, सब बर्थडे विश करना है, तो वो फिर 1-2 एजेंट्स उसको मैनेज कर लेते हैं. सो या आई थिंक प्रोबेबली 6 तो मैंने किए हैं, बट आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू चेक ड्यूरिंग द बूट कैम्प एज वेल कि कितने मल्टीपल एजेंट्स हम इकट्ठे काम करवा सकते हैं. सो या दैट्स गुड. अच्छा, मूसा भाई कह रहे हैं आई एम फ्रॉम अ टेक सेल्स बैकग्राउंड, दिस यूज केस डायरेक्टली इनबाउंड कॉल्स. यप. सो मूसा, दिस इज फॉर बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स. इनबाउंड तो क्योंकि मैंने किया है, जस्ट आउटबाउंड कॉल्स के लिए भी है. सो व्हाट यू विल डू इज कि आप मुझे किसी डेटाबेस में अपनी कस्टमर की इंफॉर्मेशन दें, उनका नंबर दें, नाम दें, वो क्या करते हैं, उनकी सारी डिटेल है, और वो एसडीआर उन्हें कॉल करेगा. यूएस के नंबर से टोलियो का आप ले सकते हैं, अपना लोकल भी लगा सकते हैं. कॉल जाएगी, बात होगी, और आपको कॉल के एंड पे ट्रांसक्राइब हो जाएगी. फॉर एग्जांपल वो कॉल पे कहते हैं जी आई वुड लाइक टू बुक अ डेमो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली ड्यूरिंग द कॉल सेंड हिम एन ईमेल कि यार ये मेरा कैलेंडर का लिंक है, ऑन साहब आप प्लीज डेमो बुक कर लें. और आउटबाउंड के तो बहुत ही एजेंट्स बने, आप रिसर्च भी करेंगे तो काफी एसडीआर्स जो हैं वो एआई ने बनाए हैं. कैन यू मैन्युअली टेक ओवर कंट्रोल ओवर कॉल्स? यस यू कैन. वो आपको राउट कर सकता है. एक यूज केस हमने बनाया था लॉ फर्म के लिए. उसमें इंश्योरेंस क्लेम के लिए यूएस में ना कॉल्स आती हैं कि जी आपका केस हम ले सकते हैं कि नहीं. तो उसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं कि एक्सीडेंट साल से पहले, इट शुड बी नॉट मोर देन 12 months. आई शुड बी श्योर कि मेरी गलती नहीं है. आई शुड हैव फोटोग्राफिक एविडेंस एंड आई शुड हैव इंश्योरेंस. ये 4 चीजें जो मैं क्वालिफाई करता हूँ. अब एजेंट या तो मुझे कहता है कि यार आई कैन स्केड्यूल अ मीटिंग विद माय लॉयर, और डू यू वांट मी टू राउट द कॉल टू द लॉयर राइट नाउ. तो मैं अगर कहूंगा ना कि आप राउट कर दो, तो वो कॉल फिर मेरे लॉयर को चली जाएगी. सो दिस कैन हैपन. तो यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ द कॉल्स. और हम एजेंट को प्रॉम्प्ट में ये भी दे सकते हैं कि अगर आपको कोई नई चीज समझ आ रही तो प्लीज ऑन साहब को कॉल कर लें और ऑन विल टेक ओवर. सो वी कैन डू दैट. Yes, Amas, absolutely. It can transfer to a human agent as well if the bot isn't able to answer. Hamad keh rahe hain, you are a second semester student. What steps I can take as a mentor and be in this one? Well, I think not saying because we are doing this bootcamp, but I think the best way would be to join a bootcamp. And I'll tell you one thing from my personal experience. It's been 6 years since I've graduated. Like university, maybe I owe all of my career to the courses that I did. और उस टाइम पे तो मैं टॉरेंट से डाउनलोड करता था, पैसे नहीं होते थे करने के, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन आई थिंक तब भी मुझे कर लेने चाहिए थे ये. और फिर मैंने बाद में आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और मैंने कोर्सेज से बहुत सीखा. और अभी भी करंटली आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ बूट कैंप्स इंटरनेशनली. मैं डेटा कैंप भी करता हूँ. तो इट्स जस्ट अबाउट लर्निंग, बट स्पीड इज एवरीथिंग ओवर हियर. अगर आप कहेंगे जी मैं पैसे बचा लूँ और मैं खुद सब कुछ सीखना चाहूँ, तो इतना कुछ है एआई में कि आप कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे. सो द गोल इज कि यू नीड टू हैव कंसाइज बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन
जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचा सके। मतलब मेरा गोल 8 हफ्तों में हमारा ये है कि आप वॉइस एआई बना के बेच सके। मेरा गोल ये नहीं कि जी मैं आपको फाइन ट्यूनिंग सिखाऊं, मैं आपको एलएलएम सिखाऊं, जो आप सीखेंगे, बट वी वांट यू टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू एक्सेल इन योर करियर और एक्चुअली हेल्प यू सेल दीज प्रोडक्ट्स। तो एज अ बिगिनर आप आई थिंक कोई बूट कैंप हमारा करना चाहें, कोई भी आप बूट कैंप ज्वाइन करें जो आपको एक इंस्ट्रक्टर बता सके एक ब्लूप्रिंट कि ये स्टेप 1 टू स्टेप 20 है और स्टेप 20 के बाद आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड इज जस्ट कीप ऑन आइटरेटिंग, कीप ऑन मेकिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। आप करते रहें क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एआई को मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग फेज में है। एवरीबडी इज लर्निंग थ्रू डूइंग। तो जितनी आप आइट्रेशन करेंगे, जितना आप चीजें बनाएंगे, आप यूज केसेस बनाएंगे, उतना आप सीखेंगे और उतनी आपकी में बेहतरी आएगी। सो इट्स ऑल अबाउट राइट नाउ ग्राउंड वर्क, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस राइट नाउ। सो या, एंड अमाद आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम सेकंड सेमेस्टर में आप इसको करें। आई थिंक जब व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर तब तो हमारे पास एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग थी, तो मैंने फेसबुक एड सीखे थे। बट दुनिया आई थिंक 6 साल बाद बहुत चेंज होगी। नाउ वी हैव एआई, सो डेफिनेटली यू शुड लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। हुसैन मुर्तज़ा का सवाल है, आई थिंक बैंकिंग का काफ़ी, बिकॉज मे बी हमारी ज़्यादा कॉल सेंटर में हमारी बैंकिंग से एक्सपीरियंस होता है। सो Yeah, I think बैंकिंग का क्वेश्चन ज़्यादा है, बट let's move to the next one by Musa Ali, and then we can just, wrap it up because, yeah. how do we map the workflow of a business industry on voice AI? Acha, Musa, can you rephrase that question? I don't know if I understand it. How do you map the workflow of a... Acha, so Musa, I think this is more related to the pitch कि आपने business या industry को pitch क्या देनी है voice AI की। तो यार वो usually what we do is कि we have these tools, FigJam है हम use करते हैं, Canva, Canvas है, we have Miro as well। ये कुछ tools हैं जिसपे हम पूरा workflow बनाते हैं कि जी कॉल आएगी, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसको पूरा हमने ना कस्टमर को बेसिकली प्लेट में रख के देना है that this is what the voice agent will do, and he has to understand that. And the second piece which has really helped us sell is that whenever I go into a sales call, I take an agent with me and I'll be like during कि जी ये आपका फोन पड़ा, जरा प्लीज इस नंबर पे कॉल करें। तो वो कहते जी नहीं हमने कॉल नहीं करनी। कहते एक तो करके तो देखे। So जब वो कॉल करते हैं, एजेंट उनसे बात करता है, whatever that use case is, so that gives a lot of credibility to what we're selling. So taking that into the sales call, taking that workflow कि आपने अपना homework किया हुआ उस industry का, so that is something that's amazing, that will help you sell. So yes, workflow, prototypes, MVPs, very important in selling. It's not an easy market, but definitely it is a very fruitful market. So I think I'll end it over there. Kibriya, over to you. Thank you so much, everyone. Thank you so much, John, for such an insightful session. It was really amazing to understand and learn all the ins and outs of the market from you. And for everyone else, we are coming up with the Voice AI Bootcamp, जिसका मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया. We'll be announcing it in the next month. So keep an eye on our website, atomcamp.com. And there you will see all the courses, curriculum, उसमें क्या क्या cover होगा, उसमें क्या क्या additional चीजें होंगी. But the one that we are going to offer with On, you heard it. What is going to be in the boot camp? From the development, from to the sales, we are going to cover everything that comes under this umbrella. So keep an eye on the website, and we'll definitely be sending you the emails regarding the boot camp. So also keep an eye on your inbox as well. Thank you so much for joining, and thank you so much On for taking out the time. And I think it was a really interesting one, and looking forward to more from you. Thank you so much. Looking forward to working with you guys and seeing you. Thank you so much. Thank you so much. If you have any queries or if you have any questions, please send those to admissions@atomcamp.com. I'll be just commenting it. आप यहाँ पे हमें अपने messages या अपनी कोई queries करें. We'll make sure that we get back to you at our earliest. And thank you so much for joining. See you all in the next webinar. Allah Hafiz. Thank you guys. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.